وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اور ہم نے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے قبل بھی رسول بھیجے تو ہم نے ان کو تکلیف اور تنگی کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں، تو کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا انہوں نے کیوں نہ عاجزی کی، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال کو سجا دیا تھا، تو جب وہ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ اترانے لگے اس پر جو وہ دیے گئے تھے، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مواخذہ کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ہوتا یوں ہے جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہلکے ہلکے عذاب نازل فرماتا ہے، مثلاً قحط یا خشک سالی یا کوئی وبا، اور یہ عذاب وارننگ کے طور پر اور تنبیہ کے طور پر آتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں، عاجزی کریں۔ اگر لوگ واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اگر قوم توبہ نہ کرے اور نافرمانی اور سرکشیوں میں بڑھتی چلی جائے تو اس پر دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، اور وہ ہے عیش و عشرت کی فراوانی، جس میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو یکسر بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری تہذیب و تمدن اور ہماری ملکی معیشت میں ترقی ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ انفرادی طور پر ہوتا ہے اور یہی معاملہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، عذاب، سختیاں، صدمات آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تو انسان نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو پھر وہ اس کے لیے رحمت بن گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ لیکن اگر انسان ان سے بے پرواہ رہتا ہے
तो फिर अल्लाह ताला दूसरा अजाब देते हैं। अब अल्लाह ताला उस कौम की रस्सी दराज कर देते हैं या उस शख्स की रस्सी दराज कर देते हैं जो हदायत हासिल नहीं करता। और होता क्या है, अब ऐशो इशरत की फरावानी हो जाती है और वो शख्स या वो कौम ये समझने लग पड़ती है कि मेरे अंदर तो कोई खराबी है ही नहीं जिसकी इस्लाह की जरूरत है। और ये अल्लाह की तरफ से सख्त आजमाइश होती है। अब इस आजमाइश में इंसान मुब्तला होता है, फिर अचानक अल्लाह ताला उस शख्स की या उस कौम की जड़ काट के रख देते हैं। जब वो भूल जाते हैं जो उनको नसीहत की गई, हम उनके ऊपर हर चीज के दरवाजे खोल देते हैं, ऐशो इशरत की फरावानी हो जाती है। हत्ता कि जब वो इतराने लग पड़ते हैं जो उनको दिया गया, हम उनको अचानक पकड़ लेते हैं। उस वक्त वो मायूस होने लगते हैं, तो जालिम लोगों की जड़ उस वक्त काट दी जाती है। और तमाम तारीफें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। आप देखिए पाकिस्तान पर भी अल्लाह की तरफ से बार बार तंबीहात का सिलसिला जारी है। कभी अजाब आ जा, कभी बारिश सैलाब आ जाता है, कभी जल्जला आ जाता है, कभी बारिश रुक जाती है, कभी लोड शेडिंग हो जाती है, कभी महंगाई आ जाती है। और ये अल्लाह ताला इसलिए बार बार अपनी आजमाइशें भेजते हैं, शायद मुसलमान जो हैं संभल जाएं, शायद संभल जाएं। फिर एक आजमाइश और आती है, अल्लाह ऐसे लोगों की रस्सी दराज कर देते हैं और ये आजमाइश पहली आजमाइश से ज्यादा बड़ी होती है। इसकी मिसाल बिल्कुल यूं होती है जैसे मैंने पहले भी कई दफा आपको बताया, अब वालिदैन अपनी औलाद की ठोका ठाकी रखते हैं, उनको तंबीह करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब वो औलाद की इस्लाह से मायूस हो जाते हैं, फिर उसकी जान छोड़ देते हैं, जा दफा हो जा, हमारी जान छोड़, हम तुझे कुछ, ठीक है। और ये वालिदैन की नाराजगी का इजहार होता है। अल्लाह ताला भी ऐसा ही करते हैं, जब इंसान की रस्सी दराज कर देते हैं, फिर एक वक्त आता है अजाब अचानक पकड़ लेता है और उस कौम की या उस फर्ज की जड़ काट के रख दी जाती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी अजाब से बचा ले। अल्लाह हम पर वही रहमत फरमाते रहें जो वालिदैन अपनी औलाद पर रहमत फरमाते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक देते रहें और अपनी तरफ रजू करने की तौफीक देते रहें। अल्लाह ताला की इन जो तंबीहात हैं, अल्लाह ताला हमें उससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए भला देखो तुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे कान और आंखें ले ले, तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दे, कौन सा ऐसा खुदा है अल्लाह की जात के अलावा जो तुम्हें ये कान, आंखें और दिल ला के देगा। देखो हम किस तरह आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं, फिर वो इससे मुंह मोड़ते हैं। और ए नबी फरमा दीजिए भला देखो तुम, अगर अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर अचानक आ जाए या जाहिर तौर पर आ जाए, तो क्या उस वक्त जालिमों के अलावा कोई और हिलाक होगा? जालिम ही हिलाक होंगे। और हम पैगंबरों को इसलिए पैगंबरों को खुशखबरी देने वाले और दोज़ख से डराने वाले बनाकर भेजते हैं, तो जो ईमान ले आए और अपनी इस्लाह कर ले तो उस पर तो कोई खौफ नहीं और ना ही वो गम खाएंगे। और वो लोग जो हमारी आयात को और हमारे पैगंबरों को झुठला दें, उन्हें हमारा अजाब पहुंचेगा, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। ए नबी फरमा दीजिए, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना ही मैं गैब जानता हूँ और ना ही मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। यहाँ इस आयत ये आयत हमें अंबिया के इख्तियारात बता रही है। अंबिया का कभी भी ये दावा नहीं होता कि हम गैब जानते हैं। हाँ, उम्मती लोग जरूर उन्हें आलिमुल गैब समझ लेते हैं, इसीलिए तो जब मिलाद पढ़ा जाता है तो हजूर आ गए का दावा किया जाता है। ठीक है, अंबिया के मुंह से अल्लाह ताला ने कहलवाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से, ए नबी फरमा दीजिए, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना ही मैं गैब जानता हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। नबी फरिश्ते नहीं होते, नबी नूर नहीं होते, नबियों के पास नबी गैब नहीं जानते होते और नबियों के पास कोई ऐसा सुरमा नहीं होता जिसको देखने से उनको जमीन के पोशीदा खजाने नजर आने लग जाएं। मैं तो सिर्फ उस चीज की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। नबी में और एक इंसान में फर्क सिर्फ वही का होता है। नबी पर अल्लाह की तरफ से वही आती है और वो उस वही पर अमल करने का खुद भी पाबंद होता है और लोगों को उस वही को पहुंचाने का भी पाबंद होता है। ये फर्क है नबी में और एक इंसान में।
नबी ना तो नूर होता है, ना फरिश्ता होता है, ना आलिमुल गैब होता है, ना जमीन के खजानों का मालिक होता है, ना उसके पास कोई खुदाई ताकतें होती हैं। वो एक इंसान होता है जिसको अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमा लेता है। कह दीजिए, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, या एक गुमराह और हदायत याफ्ता बराबर हो सकते हैं? क्या तुम क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? और इस कुरान के साथ उन लोगों को डराइए जो कि खौफ खाते हैं कि वो अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और मददगार न होगा, कोई दोस्त और सिफारिशी न होगा, शायद कि वो दोज़ख से बच जाएं। और उन लोगों को ना दुत्कारिए जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं और अपने रब की रजा चाहते हैं। आपके ऊपर उनके हिसाब में से कुछ नहीं और तेरे हिसाब में से उन पर कुछ नहीं। तू उन्हें दुत्कारेगा तो ए नबी तू तो जालिमों में से हो जाएगा। बाद मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश जिसमें अकरा बिन हाबिस और उयैना का खास तौर पर जिक्र आता है, आपके पास आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, हमारा आपकी मजलिस में बैठने को दिल चाहता है, मगर आपके गिर्द ये कुछ हकीर और कुछ गुलाम और गरीब किस्म के लोग बैठे होते हैं, लिहाजा हम अब झिझक महसूस करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी मजलिस से निकाल दें तो हम आपके पास आने को तैयार हैं। आप चूंकि बड़े बड़े सरदारों के ईमान लाने पर बड़े हरीस थे, दिल में कोई ऐसी तरकीब सोच रहे थे कि उनको अपना पैगाम पहुंचा सकें, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि ए नबी, उन लोगों को ना दुत्कारिएगा जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं। वो गुलाम हैं, वो गरीब हैं, वो हकीर हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो हकीर नहीं हैं। वो ईमान वाले हैं, अल्लाह उनका बहुत कदरदान है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को अपने गिर से ना दुत्कारिएगा। अगर आप उन्हें दुत्कारेंगे तो आप जालिम हो जाएंगे। और इसी तरह हमने उनके एक को दूसरे के साथ आजमाया ताकि वो लोग कहें कि क्या यही वो गरीब और हकीर लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर से एहसान किया है और उन्हें ईमान लाने की दौलत बख्शी है। क्या अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को जानता नहीं है? अल्लाह ताला को पता नहीं कि कौन शख्स मुझ पर ईमान लाता है और कौन शख्स इसका अहल है कि उसको ईमान की दौलत दी जाए? और जब तेरे पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं तो ए नबी उन्हें कहिए, तुम पर तुम्हारी रब की तरफ से सलाम हो। यही हकीर लोग जो कि कुरैश के सरदारों के नजदीक इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बैठा जाए, वो अल्लाह के नजदीक इस काबिल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें आसमान से खुद सलाम भेजता है। उन्हें कहिए, तुम पर सलामती हो तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब ने अपने नफ्स पर रहमत फर्ज कर ली है और उसने हुक्म दे दिया कि जो कोई तुम में से कोई बुरा काम जहालत के साथ करे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनसे जमाना जाहिलियत में बड़े गुनाह सरजद हो चुके थे। अब उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली थी, उनकी जिंदगी बदल चुकी थी, मगर मुखालिफीन इस्लाम उनके साबका आमाल पर उन्हें ताने देते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि जो शख्स जहालत और नादानी के साथ गुनाह करेगा और उसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ये कुफारे मक्का तुम्हें बातें बनाते रहें, अल्लाह के नजदीक तुम बड़े कीमती और बड़े अहम हो। और इसी तरह हम आयत को खोल खोल कर बयान करते हैं और ताकि मुजरिमों का रास्ता वाज़ेह हो जाए। अब जहां तक अल्लाह की रहमत का ताल्लुक है, वो गफूरुर रहीम है। वो तो कोई शख्स अगर 100 कत्ल भी कर ले तो 100 कत्ल करने के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह करने के लिए अपने घर से निकल खड़ा हो। जैसे बनी इसराइल का वो शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे, एक आलिम के पास आया और उससे कहा, क्या मेरी निजात हो सकती है? आलिम ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन तुम इस बस्ती से निकल जाओ, तुम फलां नेकों की बस्ती में चले जाओ। अब वो शख्स जो है तौबा उसने कर ली, नेकों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मौत आ गई। मौत आने पर वो नेकों की बस्ती और इसकी अपनी बस्ती जहां से ये चला था, वो बस्ती और नेकों की बस्ती अभी दूर थी। नेकी के फरिश्तों और गुनाह के फरिश्तों का आपस में इख्तलाफ हो गया।
नेकी के फरिश्ते कहने लगे कि इसने तौबा कर ली थी, जबकि बुराई के फरिश्ते कहने लगे कि देखो अभी तो ये अपनी उसी बस्ती के अंदर ही था जिस बस्ती में उसने गुनाह किए थे, और नेकी वाली बस्ती से तो अभी ये दूर था। अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन दोनों का फैसला इस तरह किया कि तुम फासला नाप लो, जो बस्ती इस आदमी के करीब तर होगी तो उसी के फरिश्ते इसका हिसाब लिख लें। अब साथ अल्लाह ताला ने क्या किया कि वो जो नेकी वाली बस्ती थी उसको करीब कर दिया, और इस बस्ती को, जो गुनाह जिस बस्ती में वो रहता था, इसको अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो अल्लाह ताला की तो रहमत इस कदर है कि इंसान अगर खुलूस से दिल से तौबा करे और उस तौबा पर अमल भी करना शुरू कर दे, अपनी इस्लाह के लिए इक़दामात उठाने शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला 100 आदमियों के कातिल की तौबा भी कबूल फरमा लेता है। लेकिन एक बात मैं दोबारा आपसे कहूंगी, उस शख्स ने तौबा की नियत की और नियत करके अमल करना भी शुरू कर दिया। वो बस्ती छोड़ दी, हिजरत कर दी और उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। वो अलग बात थी कि अल्लाह की तरफ से जिंदगी नहीं थी, वरना अगर जिंदगी उसकी होती तो वो नेकों की बस्ती में जाके नेक बन गया होता। तो इससे आप ये गलत फहमी ना आपको हो जाए कि बस हम भी सिर्फ जबान से बोल लें तो अल्लाह माफ कर देगा। नहीं, इस्लाह की नीयत का होना लाजिम है। और हम इसी तरह आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता वाज़ेह हो जाए। कह दीजिए मुझे मना किया गया है कि मैं उन लोगों की इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। फरमा दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी करूं तो मैं तब तो गुमराह हो जाऊंगा और मैं हिदायत याफ्ता नहीं रहूंगा। ए नबी फरमा दीजिए मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ, मेरे ऊपर कुरान नाजिल होता है, वही नाजिल होती है और तुमने उस वही को झुठला दिया है। मेरे पास वो मौजूदे नहीं हैं जिन या वो अजाब नहीं है जिनका तुम जल्दी मुतालबा करते हो। फैसले का इख्तियार तो अल्लाह के पास है, वही हक को बयान करता है और वही बेहतर फैसला करेगा। अजाब आने का फैसला भी अल्लाह ताला नहीं करना है। वो जब हिकमत समझेगा, वो समझेगा कि अब हुज्जत पूरी हो चुकी और तबलीग का हक अदा हो चुका, तो तब अल्लाह ताला अजाब भी नाज़िल कर देंगे। कह दीजिए अगर मेरे पास वो अजाब होता जिसकी तुम जल्दी मांगते हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दिया जाता, और अल्लाह ताला तो जालिमों को ज्यादा जानता है और अल्लाह के पास गैब की चाबियां हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो जानता है जो खुश्की में है और जो तरी में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर अल्लाह उसे जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना नहीं होता और ना कोई तर और ना कोई खुश चीज होती है मगर लिखी हुई किताब में दर्ज होती है। अल्लाह आलिमुल गैब हैं। समंदर की गहराइयों में जो चीजें हैं अल्लाह उसे भी जानते हैं। पत्थरों का जो कीड़ा है अल्लाह उसे भी जानते हैं। एक दाना गिरता है, एक पत्ता गिरता है, अल्लाह उसका भी इल्म रखते हैं। ना सिर्फ इल्म रखते हैं बल्कि अल्लाह ने ये सारा कुछ लौहे महफूज के अंदर उसका रिकॉर्ड भी रखा है। अल्लाह ताला का इल्म उसको आप उसके करीब भी नहीं जा सकते। हर चीज का रिकॉर्ड अल्लाह ताला ने लिख के कहाँ रखा है? वाज़े किताब में। और वाज़े किताब कौन सी है? लोहे महफूज। और वो वही जात है जो तुम्हें रात को फौत कर देता है। रात को फौत करने से क्या मुराद? जब इंसान सोता है उसकी रूह निकल जाती है, और ये भी एक तरह से फौत करने के ही मुतरादिफ है। इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई है, बिस्मिल्लाहि अमूतु व अहया, उस अल्लाह के नाम के साथ मैं मरता हूँ और मैं जिंदा होता हूँ। और सुबह को हमें दुआ सिखाई गई है जब हम सोकर उठें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, उस अल्लाह की तारीफ है जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ हमने क़यामत को उठकर खड़े होना है। तो रात को जब इंसान एक दफा सोता है उसकी रूह निकल जाती है। इसी चीज को अल्लाह ताला ने वफात से ताबीर किया है। और वो वही जात है जो तुम्हें रातों को फौत कर लेता है, और वो जानता है जो तुम दिन को करते हो। फिर वो तुम्हें क़यामत वाले दिन उठाएगा ताकि एक वक़्त मुकर्रर तक फैसला कर दिया जाए। फिर वो तुम्हें उठाता है ताकि
तुम वक़्त मुकर्रर तक तुम्हारी जिंदगी गुजर जाए, फिर अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। फिर वो तुम्हें खबर देगा जो तुम अमल करते थे, और वो अपने बंदों पर बड़ा जबरदस्त है, और वो तुम्हारे ऊपर हिफाजत करने वाले फरिश्ते भेजता है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक को मौत आती है, उसे हमारे भेजे हुए फरिश्ते फौत कर लेते हैं, और वो जरा बराबर भी कोताही नहीं करते। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में दिन और रात के फरिश्ते एक दूसरे के बाद बारी बारी आते रहते हैं। असर और फजर की नमाज के वक़्त वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास रहे थे अल्लाह के पास जाते हैं, तो अल्लाह उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? हालांकि वो तुमसे खूब वाकिफ होता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास गए तो तब भी नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह के पास हमारी रिपोर्ट एक दिन में 2 दफा जाती है, एक फजर के वक़्त, एक असर के वक़्त। इसके अलावा ये तो वो फरिश्ते हैं जो इंसान का नामा अमाल लिखते रहते हैं। रात के फरिश्ते अलग हैं, दिन के अलग हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे फरिश्ते भी होते हैं जो इंसान की जान की हिफाजत करते हैं। बाज़ औक़ात आपको ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि आप अपनी मौत को बिल्कुल आंखों के सामने देखते हैं। आप बस सड़क पे जा रहे हैं, आपको यूं लगता है अभी एक्सीडेंट होने वाला था और अभी मामला खत्म होने वाला था, और आपकी जबान से उस वक्त निकल जाता है, आज तो मैं मरने ही वाली थी, अल्लाह ने बचा लिया। तो ये वो फरिश्ते होते हैं जो उस वक्त आपकी जान की हिफाजत कर रहे होते हैं। इन्हीं का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है, वयुरसिलु अलैकुम हाफ़ज़ा, वो तुम्हारी हिफाजत करने वाले फरिश्ते भेजता है। यहाँ तक कि जब इंसान की जिंदगी तमाम हो जाती है, हजरत इस्राइल 19 फरिश्तों की टीम के साथ तशरीफ लाते हैं और इंसान की रूह निकाल लेते हैं, और वो अपने इस अमल में जरा बराबर भी कोताही नहीं करते, और इस रूह को या तो इल्लीयीन में जाके जमा करा देते हैं, या उस रूह को सिज्जीन में जमा करा दिया जाता है। फिर वो लौटा दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ, जो उनका सच्चा आका है। सुन रखो, अल्लाह ही के लिए तमाम इख्तियारात हैं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। अब ये जो अल्लाह जल्द हिसाब लेता है, दुनिया में तो अल्लाह ने डील दी होती है, जो ही मौत आती है और पर्दे सारे उठ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया जिसको हम देखते हैं, ये दुनिया वो नहीं है जो हमें नजर आ रही है। इस हॉल में हम बैठे हुए हैं, इस हॉल में ही पता नहीं कितने फरिश्ते और शयातीन हमारी आंखों से ओझल हैं, लेकिन जब मौत आती है अल्लाह पर्दे हटा देते हैं, और इंसान को वो फरिश्ते जो उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं वो उसको नजर आने लग जाते हैं, और फिर उसके साथ ही हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो जाता है। कब्र में इंसान का हिसाब होता है। कब्र में जाते ही अभी इंसान को लिटाया गया होता है, तो फरिश्ते आ जाते हैं, रूह उसमें डालते हैं और उसे बिठा लेते हैं। सवाल करते हैं, मन रब्बु का, मन मा दीनु का, मन नबीयु का, तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन, तेरा दीन कौन। और फिर हदीस में आता है, जो तो इसका जवाब दे देता है, जो नेक होता है उसको तौफीक हो जाती है। फिर उसके लिए कहा जाता है, इस शख्स ने सच कहा, उसके लिए जन्नत में जन्नत का फर्श बिछा दिया जाता है, उसे जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है, और उसे कह दिया जाता है, तू सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है, तुझे क़यामत से पहले अब डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन जो शख्स काफिर होता है या मुनाफिक होता है या गुनहगार होता है, वो कहता है, हा हा लादरी, हाय हाय मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मेरा नबी कौन था, मेरा दीन क्या था। वो कहता है, मैं तो, लोग एक बात कहते थे मैं कह देता था, लोग एक काम करते थे मैं कर लेता था। तो फिर उसके लिए फौरन कब्र तंग हो जाती है, उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर यूं घुस जाती हैं, उसको दोज़ख में, उसकी कब्र में दोज़ख की खिड़की खुल जाती है, उसको कब्र का अजाब होता है, उसकी कब्र में 99 सांप और अज़्ज़े मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो उसको काटते हैं और उसको डसते हैं। वो चीखता है, उसकी चीख को कायनात की हर शय सुनती है सवाए इंसान और जिन के, क्योंकि वो इनके लिए आजमाइश है। इसके अलावा उसकी कब्र के अंदर मुनकर और नकीर, वही जो हिसाब लेने वाले फरिश्ते होते हैं, उसे अपने गुर्जों से मारते हैं। एक दफा गुर्ज मारते हैं, वो आदमी रेजा रेजा हो जाता है,
चीखता है, चिल्लाता है, दोबारा जान डाली जाती है और फिर उसको मारा जाता है और ये अजाब उसे क़यामत तक होता रहता है। तो अल्लाह ताला तो बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ने डील कब तक दी है? जब तक मौत नहीं आती। तो नेकी करने का वक्त आज है, इस वक्त है, कल कभी नहीं आता। ये कल का जो ख्याल है कि मैं कल मेरे जरा बच्चे बड़े हो जाएं, मेरा जरा हाथ खुला हो जाए, जरा मुझे टाइम मिलने लग जाए, मैं आपको बताऊं ये शैतानी धोखे होते हैं। जो आज नहीं करता वो कल कभी नहीं करता। ये सब शैतानी वसवसे हैं। तो लिहाजा नेकी करनी है, आज करें, इसी वक्त करें और अभी करें। और ये वक्त कितना कीमती है। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि एक ही कबीले के दो शख्स जो थे ईमान लाए एक ही वक्त में। एक शख्स तो उनमें से शहीद हो गया और दूसरा शख्स साल बाद फौत हुआ। उनको ख्वाब आई कि जो बाद वाला शख्स है वो जन्नत में पहले दाखिल हो गया। बड़े हैरान हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि क्या वो शख्स उस शहीद के 1 साल बाद नहीं फौत हुआ? और इसमें रमजान आया, उसने रोजे रखे, उसने नमाजें पढ़ी। अब उस शख्स का उस शहीद से जन्नत में इतना रुतबा ज्यादा है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। ये है इंसान के वक्त की कीमत। जब आप इस वक्त से फायदा उठा लें, और अगर वक्त से फायदा ना उठाएं तो फिर ये इंसान के लिए सिवाय हसरत के और कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला तो जल्द हिसाब लेने वाला है। और कह दीजिए तुम्हें खुश्की और तरी के अंधेरों से कौन निजात देता है? तुम अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा कर और खुफिया तौर पर पुकारते हो। अगर अल्लाह ताला ने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम लाजमन उसके शुक्रगुजार हो जाएंगे। कह दीजिए अल्लाह ही तुम्हें उससे निजात देता है, इसके अलावा हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम शरीक ठहराते हो। जब अल्लाह ताला तुम्हारी कोई तकलीफ दूर कर देता है फिर इंसान कुफर भी करता है और शिरक भी करता है। उस वक्त इंसान को याद आ जाता है, ओ मैंने तो फलां पीर के मजार पे मन्नत मानी थी, मैंने तो वहां देख चढ़ानी है। और फिर वो वहां देख चढ़ाने चल पड़ता है। एक तो कुफर करता है अल्लाह की, बजाय इसके कि अल्लाह का फरमाबरदार होता, अल्लाह की नेमत का इनकार करता है और उसके साथ अल्लाह की मखलूक को शरीक ठहराने लग जाता है। तो जब इंसान इस तरह के काम करता है तो इंसान 2 गुनाहों का शिकार हो रहा होता है। कौन से? एक कुफर का, अल्लाह की नेमत का इनकार, और दूसरे अल्लाह के साथ शिरक का मुर्तकिब हो रहा होता है। कह दीजिए वो इस बात पर कादिर है कि तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से आ जाए या तुम्हारे पांव के नीचे से आ जाए या तुम्हें आपस में ही लड़ा दे और तुम एक दूसरे की लड़ाई का मजा चखो। अल्लाह ताला को अजाब देना मुश्किल है। ये आसमान, ये जो छत है, ये हमारे ऊपर टूट कर आप गिरे, हमारी यही कब्र बन जाए, ये जमीन फट जाए, हम इसके अंदर समा जाएं, या अल्लाह ताला आपस में एक दूसरे को लड़ा दे। घर में बाप और बेटे होते हैं, बहन और भाई होते हैं जो एक दूसरे की तकवीयत का सबब होते हैं, यही आपस में लड़ने लग जाए। घर में ही बाप बेटे को कत्ल कर दे, बेटा बहन को कत्ल कर दे, ये भी अल्लाह की अजाब की किस्में हैं। अल्लाह को अजाब देने के लिए कोई एहतमाम नहीं करना पड़ता और वो तुम्हें एक दूसरे की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम कैसे आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि वो समझ जाएं। और कुरान को तेरी कौम ने जुठला दिया, हालांकि वो बरहक है। ए नबी इनसे कह दो मैं तुम्हारे ऊपर वकील नहीं, हर खबर के लिए एक वक़्त मुकर्रर है और अनकरीब तुम जान लोगे कि अल्लाह कब सजा देता है। और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयत में नुक्ता चीनियां कर रहे होते हैं तो उनके पास बैठने से एराज कीजिए यहाँ तक कि वो दूसरी बात में लग जाएं। अगर शैतान आपको बुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ मत बैठो। हमने कल भी आयत पढ़ी थी कि कहीं अगर तुम देखो अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा हो या उनका कुफर किया जा रहा हो तो उनके साथ न बैठो। उस वक्त तुम उन जैसे होते हो, उस वक्त तुम उन जैसे होते हो। यहाँ उसी हुक्म को दोबारा दोहराया गया। और अगर आपको शैतान बुला दे, आपको ये बात याद ना रहे, तो जो ही आपको याद आए
तो फौरन जालिम कौम के पास से निकल जाइए। वहां आप सिर्फ एक सूरत में बैठ सकते हैं, आप वहां उनको बताइए कि तुम जो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हो या झुठला रहे हो, ये तुम गलत काम कर रहे हो। नहीं अनिल मुनकर का अगर फरीजा अंजाम दे सकते हो तो वहां बैठो, वरना फिर वहां से उठ जाओ। और उन लोगों पर जो अल्लाह से डरते हैं, इन जालिमों के हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं जो अल्लाह से डरते हैं, मगर नसीहत करना तो फर्ज है ताकि वो गलत कामों से बच जाएं। और उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है। दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में मुब्तला कर दिया है, और उन्हें नसीहत कीजिए कि कोई जान इस अपनी करतूतों की बायस बर्बाद हिलाक न हो जाए। उनके लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त होगा, ना सिफारिशी होगा, और अगर वो हर किस्म का बदला भी दें तो उनसे ना लिया जाएगा। पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं, दुनिया सोने की भरी हुई उन्हें दे दें, दुनिया जितना माल और इससे डबल माल भी अगर वो दे दें, और क़यामत के दिन का अजाब का फिदिया देना चाहें, उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये लोग हिलाक कर दिए गए अपने करतूतों के सबब। उनके लिए खौलता हुआ पानी पीना होगा और दर्दनाक अजाब होगा, इस वजह से जो वो कुफर करते थे। कह दीजिए कि हम अल्लाह के सिवा उसे पुकारें जो ना नफा देता है और ना हमें नुकसान देता है, और हम अपनी एड़ियों पर पलट जाएं, यानी शिरक करने लग पड़े, जब हालांकि हमें अल्लाह ने हदायत दी। उस शख्स की तरह जिसको शैतान ने पागल कर दिया हो, वो जमीन में हैरान फिरता है, उसके साथ ही उसे हदायत की तरफ पुकारते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन उसकी ऐसी शैतान ने मत मारी हुई है, उसे हदायत की समझ ही नहीं आती। कह दीजिए यकीनन अल्लाह ही जिसको हदायत दे वो ही सही हदायत होती है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए फर्माबरदार हो जाएं और नमाज कायम करो और अल्लाह से डरते रहो। और वो वही ज़ात है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे, और वो वही ज़ात है जिसने ज़मीन और आसमान को हक के साथ पैदा किया, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो क़यामत हो जाएगी। उसका कहना बरहक है, और उसके लिए बादशाही है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा, गैब और हाजिर को जानने वाला है, और वो हिकमत वाला और खबरदार है। मबूदान बातिल और उनके पूजने वालों की तरदीद के बाद अल्लाह ताला ने इस आयत में सच्चे माबूद की 6 सिफात बयान फरमाई हैं, और वो ये हैं। सबसे पहली, अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। नंबर 2, वो कायनात को में वुसअत भी पैदा करता रहता है, जब उसे कुछ करना मंजूर होता है तो कुन कह देता है और वो काम हो जाता है। तीसरी बात, उसकी हर बात सच्ची और हकीकत पर मबनी होती है। चौथी बात, जिस दिन उसने इस कायनात को खत्म करना है और क़यामत को आखिरत को वजूद में लाना है, तो तब भी वो कुन फयकून कहेगा, और क़यामत वाले दिन बादशाही सिर्फ उसी की होगी, और उसके लिए गैब और हाजिर सब एक जैसे हैं। वो जैसे हाजिर को जानता है, ऐसे ही वो गैर मौजूद चीज को भी का भी इल्म रखता है, और वो हिकमत वाला और खबरदार है। उसके हर काम में और हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत जरूर मौजूद होती है, खा इंसान को वो समझ आए या ना समझ आए। तो ये 6 सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अंदर ही पाई जाती हैं। जो झूठे माबूद हैं, इन सब से ये चीजें उनके अंदर नहीं पाई जाती। और जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर को कहा कि आप बुतों को माबूद बनाते हैं, मैं देखता हूँ कि आप भी और आपकी कौम वाज़े गुमराही में हैं। आपको पता है हजरत इब्राहिम के बाप आजर जो थे वो वजीर औकाफ के ओहदे पर मुतमक्कन थे, और तमाम बुत परस्ती इन्हीं की निगरानी में होती थी। अल्लाह की कुदरत देखिए, उन्हीं के घर में अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुवक्हिद पैदा कर दिया। तो हजरत इब्राहिम को बचपन में ही ये बातें समझ आती थी। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि मैं आपको और आपकी कौम को वाज़े गुमराही में देखता हूँ, और इसी तरह हमने हजरत इब्राहिम को जमीन और आसमान की बादशाही दिखाई, और ताकि वो तौहीद पर यकीन करने वालों में से हो जाए। जब उनके ऊपर रात छाई, उन्होंने सितारा देखा, कहने लगे ये मेरा रब है। जब वो छुप गया तो कहा मैं छुपने वालों को पसंद नहीं करता। जब चांद को चमकते हुए देखा तो कहा ये मेरा रब है, क्योंकि वो बड़ा सितारे से ज्यादा नुमाया था। जब वो भी छुप गया तो कहा अल्लाह तूने अगर मुझे हदायत न दी तो मैं
गुमराहों में से हो जाऊंगा। जब सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये तो चांद से भी बड़ा है। तो जब वो भी छुप गया तो कहा है मेरी कौम, मैं बरी हूं उससे जो तुम शिरक करते हो। असल बात ये है, हजरत इब्राहिम के जहन में ये बात थी कि माबूद ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो हर वक्त जिंदा कायम दायम हो, क्योंकि मखलूक को हर वक्त अल्लाह से, वो हर वक्त अल्लाह की मोहताज होती है, उसे हर वक्त अल्लाह को अपनी फरियादें सुनानी होती हैं। तो जो हस्ती रात को सो जाए, छुप जाए, तो उतनी देर में मखलूक बगैर माबूद के हो, ऐसा मुमकिन नहीं। तो लिहाजा हजरत इब्राहिम को ये बात समझ आ गई कि जो चीज छुप जाती है वो चीज माबूद नहीं हो सकती। तो कहने लगे है मेरी कौम, मैं उससे बरी हूं जिनको तुम शरीक ठहराते हो। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया एक तरफा होकर, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और हजरत इब्राहिम को ये समझ आई कि वो हस्ती जो सूरज की भी खालिक है, जो चांद की भी खालिक है, जो सूरज की भी खालिक है, वो हस्ती असल में माबूद होनी चाहिए जो कि हय्युन क़य्यूम है। और उसकी कौम ने उससे हुज्जतबाजी की। तो हजरत इब्राहिम ने कहा क्या तुम मुझसे हुज्जतबाजी करते हो, हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दी है और मैं इस चीज से खौफ नहीं खाता जो तुम शिरक ठहराते हो। हाँ, मेरा रब अगर कुछ चाहे, मुझे तुम्हारे शरीकों से डर नहीं आता। मुशरिक हमेशा इस बात का वावेला करते हैं कि अगर तुमने माबूदाने बातिल की तौहीन की तो वो तुम्हारा नुकसान कर देंगे, तुम्हें नुकसानात पहुंच जाएंगे। हजरत इब्राहिम कहते हैं मुझे तुम्हारे खुदाओं से डर नहीं आता। हाँ, अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में कोई तकलीफ रखी है तो अलहदा बात है। मेरे रब ने हर शय को अपने इल्म से संभाल लिया। तुम क्यों नसीहत हासिल नहीं करते? और मैं कैसे खौफ खाऊं जो तुम शिरक करते हो? तो और तुम नहीं खौफ खाते कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करते हो जिसकी अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं उतारी। मैं तुम्हारे खुदाओं से क्यों खौफ खाऊं? खौफ तो तुम्हें खाना चाहिए कि तुमने अल्लाह के साथ शिरक किया है। अल्लाह कहीं तुमसे नाराज होके तुम्हारे ऊपर अपना अजाब न भेज दे। तो बजाय इसके कि तुम अपने शिरक से डरो, अपने शिरक करने की वजह से अल्लाह से खौफ खाओ, तुम उल्टा मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे खुदाओं से खौफ खाऊं जो कि ना अपने नफे नुकसान के मालिक हैं, ना अपनी जिंदगी मौत के मालिक हैं। तो मैं उनसे क्यों डरूं? डरना तो उल्टा तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो और तुम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो अल्लाह के शरीक ठहराकर। तो दोनों फरीकों में से अमन का कौन हकदार है? अगर तुम वाकई जानते हो कौन हकदार था, जो कि शिरक कर रहा था, उसे तो अल्लाह से खौफ आना चाहिए। हजरत इब्राहिम भी अमन के हकदार थे। अमन के हकदार वो लोग हैं जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में शिरक को नहीं मिलाया, खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान लाते रहे। ऐसे लोगों के लिए ही अमन है और ऐसे ही लोग हदायत याफ्ता हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता फरमाए। قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان